हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मोशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ट्री इज़ फिक्स्ड एट अ प्लेस, सो वी से दैट इट इज़ स्टेशनरी। ट्री फिक्स है एक प्लेस पे, तो हम कहते हैं कि वो स्टेशनरी है। सिमिलरली अ हाउस, अ स्कूल, अ फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड टेलीफोन पोल्स आर ऑल stationary object which remain fixed at a place. On the other hand, a man, animals, birds, cars, buses, trains, ships and aeroplanes do not remain stationary all the time. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहते हैं और जो स्टेशनरी हैं उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फॉर एग्जांपल, अ मैन मूव्स when he walks along a road. A bird moves when it flies in the sky. A cheetah moves when it runs in the jungle, and a fish moves when it swims in water. Similarly, a car or bus moves on a road. A train moves on the track. A ship moves in water, and an aeroplane moves when it flies in air from one place to another. The movement of a body or object is called motion. Here you can write down the definition of motion. A common characteristic of all the living bodies is that they change their position with time. We can now define motion as follows. Here one important point is given, so we can it note. Okay, move on. A body is said to be in motion or moving when its position change continuously with respect to a stationary object taken as reference point. For example, when the position of a car change continuously with respect to a stationary object like houses and trees, we say that car is moving or that car is in motion. Let us take an example to understand the meaning of motion more clearly. In figure 2, we see a car at position A in front of a house and a tree at particular time. In this case, house and tree are the stationary object which are taken as a reference point. Now after 5 seconds we see the same car at position B, which is quite far away from the house and the tree. This means that the position of this car is changing continuously with respect to a stationary object, house or tree. Similarly, we say that this car is moving or that this car is in motion. Some other bodies or objects around us which show different kinds of motion are swing, merry-go-round, pendulum of a clock and hands of a watch. मतलब हमारा जो होता है एक नज़रिया होता है, हम किस नज़रिए से देख रहे हैं. अगर हम बस में होते हैं तो हमारा जो साथ में बैठा हुआ जो यात्री होता है, ये जो भी बैठा हुआ है वो हमें लगेगा कि वो स्टेशनरी है, लेकिन जो बाहर वाला देखेगा उसे लगेगा बस और हम दोनों मोशन में हैं. सिमिलरली हमें बाहर लगता है कि जो पेड़ है वो मोशन में है, लेकिन सबका अपना अपना रेफरेंस पॉइंट है. इफ़ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, then its movement or motion can be observed easily. But if a body moves very slowly, then it becomes difficult to observe its movement immediately. For example, a wristwatch has three hands: a second's hand, a minute's hand, and an hour's hand, which move round and round on the dial of the watch. Now, the second's hand of a watch moves quite fast, so we can observe the movement of the second hand of the watch very easily. But the minute's hand and hour's hand of a watch move quite slow, so their movement cannot be observed easily. We will have to keep on observing the position of minute's hand and hour's hand for quite some time to find out whether they are moving or not. This is because when a body moves, its position changes with time. In order to study the motion of bodies, we should first know the meaning of two terms, distance and displacement. These are discussed below. Another point to be noted is that in the study of motion, whether we use the term body or object, it means the same thing. अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सपोज अ मैन लाइव्स एट प्लेस ए एंड ही हैज़ टू रीच अनदर पॉइंट प्लेस सी. मानते हैं कि एक आदमी, जैसा कि मान लेते हैं आप प्लेस ए पे रहते हैं और आपको प्लेस सी पे जाना है.
बट फर्स्ट ही हैज़ टू मीट हिज फ्रेंड लिविंग एट प्लेस बी। लेकिन पहले उसे अपने दोस्त से मिलना है, यानी कि आपको अपने दोस्त से मिलना है प्लेस बी पे। नाउ द मैन अनदर Now the man start from point A and travels a distance of 5 kilometer to reach B, and then the another 3 kilometer from B to C. Thus the man goes along the path ABC shown by dotted line. Length of the path ABC gives us the actual path length. Length of the path ABC gives us the actual distance traveled by the man. Thus the distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels. यहाँ पे हम इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस के लिए। जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस लिखते हैं तो उसमें का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट to the distance traveled refers to the actual length of the indirect path, whereas displacement refer to the straight line path between the initial and final position. यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. So whatever be the actual length of the path followed by a moving body, displacement of the body is always represented by the shortest distance between the initial and final position of the body. When a body moves from one position to another, the shortest straight line distance between the initial and final position of the body along with direction is known as its displacement. यहाँ पे बोला है कि जब एक बॉडी मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, तो जो शॉर्टेस्ट या हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से निकाल सकते हैं बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद डायरेक्शन इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट. द डिस्टेंस ट्रेवल हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं. Distance is a scalar quantity because it has magnitude only. It has no specified direction. शायद आपने इससे पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ना पढ़ा हो, तो अभी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वो क्वांटिटी जिसके लिए केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि डिस्टेंस, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी. जिसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मायने रखती हैं, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई. The distance traveled by a moving body cannot be zero, but the displacement of a moving body can be zero. अब जैसे कि आप मितौली से लखीमपुर जाते हैं तो आपकी डिस्टेंस 35 किलोमीटर होगी, बट यहाँ पे डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसी भी केस में ज़ीरो हो सकती है. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी प्रैक्टिस के लिए. अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, हमें जैसे कि पता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मैप के अकॉर्डिंग या जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे होता है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे ईस्ट की तरफ 1.5 किलोमीटर चलेंगे. देन 2 मीटर टूवर्ड्स साउथ, फिर हम 2 मीटर साउथ की ओर चलेंगे. एंड फाइनली 4.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, फिर हम 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ चलेंगे. अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है. हम तीनों डिस्टेंसेस को जोड़ देंगे, हमारे पास टोटल डिस्टेंस 8 मीटर आ जाएगी. व्हाट इज़ हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें डायग्राम बनाना ज़रूरी होगा. डायग्राम बना सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास हमारा माइंड मैप इतना क्लियर हो तो डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन डायग्राम से हम अपनी क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं. जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो हमारे लिए डायग्राम की हेल्प से हम इजीली निकाल लेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट हमारी 6.3 मीटर निकलेगी. अब जैसे कि यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए लिखा है, वो आपको भी नोट करना चाहिए. वेन एवर बॉडी ट्रेवल्स अलॉन्ग अ जिगजैग पाथ, द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी बाय ए स्ट्रेट लाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई बॉडी जिगजैग पाथ पे चलती है
तो इसकी अगर फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें, तो वही हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अगला टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और अगर आप अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को वीडियो सेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।